हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विश्व। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 7। तो आज की इस वीडियो में हमारे जो टॉपिक है वो है एक्टिविटी 3। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग को एक्टिविटी 3 स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैन एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। फॉर दिस ask your classmate to stand with his back against a wall. Make a different of the wall exactly above his head. Now measure the distance from the floor to this mark on the wall with your hand span and then with a meter scale. Let all other students measure this length in a similar way. Record all the observations in table 7.3. Study carefully result obtained by different students. The result in column 2 may be different from each other, as the length of the hand span may be different for the different students. Look at the result in column 3 where the measurements are done using a standard scale. The result may be close to each other now but exactly equal or not equal. तो यहाँ पर क्या करना है कि इस एक्टिविटी 3 में आप लोगों को अपने फ्रेंड्स को आप लोगों को उनकी बॉडी को मेजरमेंट करना है, उनकी हाइट को हैंड स्पैन के थ्रू यानी अंगुल के थ्रू, और उन्हें आप लोगों को वॉल की तरफ मुंह करके खड़ा कर देना है और जितने भी मेजरमेंट्स आए उसे आप लोगों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है और इस टेबल 7.3 में फिल कर देना है। ये बस इतनी सिंपल सी एक एक्टिविटी है। तो ये हम लोग एक्टिविटी यहीं पे ख़त्म करके हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 4 उसमें चलते हैं। Use a thread to measure the length of the curved line AB. Put a knot on the thread near one of its end. Place this knot on the point A. Now place a small portion of the thread along the line, keeping it taut using your fingers and thumb. Hold the thread at this end point with one hand. Using the other hand, stretch a little more portion of the thread along the curved line. Go on repeating this process till the other end B of the curved line is reached. Make a mark on the thread where it touches the end B. Now stretch the thread along a meter scale. Measure the length between the knot in the beginning and the final mark on the thread. This gives the length of the curved line AB. We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distance and length correctly, and we need some standard units and devices with which we measures these distance and can convey our results to others. तो इसमें क्या करना है कि आप लोगों को इस एक्टिविटी में आप लोग को एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है A to B पॉइंट तक, और उसे आप लोग को मेज़र करना है किससे, एक आपको थ्रेड से, यानी कि जितनी सीधी लाइन जहाँ पर आ रही है और जहाँ कर्व तक, यानी कि एक लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर के कर्व तक आपको उसको मेज़र करना है। फिर उसका दूसरे लाइन से लेकर के जहाँ तक कर्व आ रहा है वहाँ से, ऐसे आप लोगों को मेज़र करते करते क्या आपको एक सिंपल सीधी लाइन आपको थ्रेड में मिल जाएगी, जिसको आप लोग अच्छी तरीके से मेजर करके उसका आंसर भी निकाल सकते हो। उसका जो रिजल्ट है वो आप लोग अच्छी तरीके से लगा सकते हो। तो फिर ये जो टॉपिक एक्टिविटी थी एक्टिविटी 4 तो ख़त्म हो गई। तो उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मूविंग थिंग्स अराउंड अस। इसे भी स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्टिविटी 5 के साथ स्टार्ट होता है, तो इसे भी शुरू करते हैं। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स you have seen recently. List them in table 7.4. These may include a school bag, a mosquito, a table, people sitting on chairs, or peoples moving about. The list may also have a butterfly, a dog, a cow, your hands, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a piece of stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a swing machine, a wall clock, or the hands of a clock. Make your list on large as you can. Which of these are moving, which are ratas? House, a flying bird, motion, objects in rest, objects in motions. How did you decide
how did you decide whether an object in the motion or at rest? You might have noticed that the bird did not. तो इस वाली एक्टिविटी में क्या करना है, आप लोगों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि हाउस, टेबल क्लॉक, फ्लाइंग बर्ड्स, एक सेकेंड हैंड क्लॉक, फिश और बहुत सारी चीज़ जो कि इसमें लिखी हुई हैं, उन सारी चीज़ को आपको ज़रूरत होगी। और उन्हें आप लोगों को जो एक कॉलम बनाना है जिसमें लिखना है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और दूसरा कॉलम बनाना है जिसमें लिखना है ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो और उन सब चीज़ों को आप लोगों को इसमें फिल करना है, जैसे एट रेस्ट में हाउस, टेबल क्लॉक, और मोशन में फ्लाइंग बर्ड, और एक सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक, यानी सेकेंड हैंड क्लॉक वो मोशन में होगी। जैसे फिश, स्विंग मशीन और ट्रेन, ये सब मोशन में होगी। तो आप लोग इस फिगर को देख लीजिएगा, टेबल 7.4 आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो ये जो हमारी एक्टिविटी 5 है तो कंप्लीट हो गया। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो एक्टिविटी 6, इसे भी स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड ants, spread a large sheet of white paper on the ground and keep a little sugar on it. Ants are likely to be attract to the sugar, and you will find many ants crawling on the sheets of paper. Soon you and for any one ant, try and make a small mark with a pencil near its position when it had just crawled on the sheets of paper. Keep marking its position after a few seconds or as it move along on the sheet of paper. After some time, shake the paper free of the sugar, and the ants connect the different points you have marked with arrows to show the direction in which the ants move. Moving each points you have marked show where the ant moved to in intervals for a few seconds. Motion seems to be some kinds of a change in the position of objects with time, isn't it? In activity 5, where did you place objects like a clock, a sewing machine, or an electric fan in your grouping of objects? Are these objects moving from one place to another? No. Do you notice movement in any their parts? The blades of the fans fans or the hands of the clock? How are they moving? Is their movement similar to the an ant or a train? Let us now look at some types of motions to help us understand these differences. तो इसमें क्या है कि आप लोगों को मतलब कि आप लोगों को एक जगह में थोड़ी सी शुगर होती है, उससे आप लोगों को रख देना है, और उसके बाद क्या जो आंट होगी वो उससे अट्रैक्ट होकर के उसके पास आ जाएंगी, और जैसे उसके पास आएंगी तो आप लोगों को क्या एक उस पेपर में आप लोगों को एक लाइन खींच देनी है, ऐसे ड्रॉ कर देनी है। तो जो आंट होंगी वो शुगर को लेकर के उसके ऊपर ही चलने लगेंगी, उसके ऊपर ही चलने लगेंगी। कौन? आंट, जो चींटियाँ होंगी। फिर आप लोगों को जो पेपर से शेक कर देना है, और उसके बाद आपको जब पेपर देखेंगे तो उसमें आप लोग को दिखाई देगा कि जो आंट होती है उनका मूवमेंट कैसा होता है, वो किस तरीके से चलते हैं, किस जगह वो कितने मिनट के लिए रुकती हैं, क्या करती है। तो ये सब आपको पता चलेगा, और मोशंस भी उनका पता चलेगा। जैसे कि एक्टिविटी 5 में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लॉक, स्विंग मशीन्स, इलेक्ट्रिक फैन, इन सब को हम लोगों ने ग्रुप में करा था कि ये सब मूविंग है। तो इनके जो मोशंस होते हैं, ये कौन से मोशंस होते हैं, तो इन्हीं कुछ मोशंस के बारे में हम लोग जानेंगे। ये हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन, तो इसे भी चलिए स्टार्ट करते हैं। You may have observed the motion of a vehicle on a straight road, march past of soldier in a parade, or the falling of a stone. What kind of motion is this? Sprinters in a 100 meters race also move along a straight track. Can you think of more such examples from your surroundings? In all these examples, we see that objects move along a straight line. This type of motion is called rectilinear motions. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बहुत सारे मोशंस होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे कि एक कार हो रही है वो सीधे जा रही है, और जो परेड है मार्च पास वो सीधे जा रही है। यानी कि ऐसा कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ऐसी कोई सी भी चीज़ जो कि सीधा जा रही है, ना दाएं ना बाएं, डायरेक्ट सीधा, ओनली सीधा, यानी सिर्फ सीधा ही जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है।
तो उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। कौन सा मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, जो सीधा लाइन में जाता है। तो इधर तो ये एक्टिविटी है हमारी, एक्टिविटी 7, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। Take a stone, tie a thread to it, and whirl it with your hands. Observe the motion of the stone. We see that the stone moves along a circular path. In this motion, the distance of the stone from your hands remains the same. This type of motion is called circular motions. The motion of a point mark on the blade of a electric fan or the hand a clock are examples of circular motions. The electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another, but the blades of the fan rotates, and so do the hands of the clock. If we mark a point anywhere, the blades of a fan or on the hands of the clock, the distance of these points from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate. In some cases, an object repeats motions after some time. This type of motion is called periodic motions. Take the stone tied with a string that you used in activity 7. Now hold the string in your hand and let the stone hang from it. This is a pendulum. Pull the stone to one side, that other hand, and let it go. Now the pendulum is in motion. It is an example of periodic motions. A branch of a tree moving to and fro motions, fro motion of a child on a string of a guitar, or the membrane of drum tabla being played are all examples of periodic motions where an object or a part of it repeats its motion after a fixed interval of a time. Did you observe a swing machine as a part of activity 5? You must have observed that it remains at the same location while any point on its wheel moves with a circular motion. It also has a needle that moves up and down continuously as long as the wheel rotates, isn't it? This needle is undergoing a periodic motion. Have you observed closely the motion of a ball along the grounds here? तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जब भी कोई फैन आप लोगों ने देखा होगा तो वो कैसे चलता है, वो गोल गोल चलता है। अब आपको समझिए, जो भी चीज़ सीधे जा रही है वो कौन सी मोशन होगी, रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। कोई भी चीज़ गोल गोल घूम रही है तो कैसा मोशन, सर्कुलर मोशन। बस फैन कैसे घूमता है, गोल गोल, सर्कुलर मोशन। कार का टायर कैसे घूमता है, गोल गोल, सर्कुलर मोशन, है ना। यही होते हैं सर्कुलर मोशन। और एक चीज़ होती है पीरियोडिक मोशन, ये एक और मोशन हो गया पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन आपको समझ में आ रहा होगा, पीरियड से रिलेटेड है कि इस पीरियड में फिर इस पीरियड, फिर इस पीरियड से इस पीरियड। अब इधर समझिए, दिन होती है, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद फिर रात आती है। यानी कि एक पीरियड में रात, एक पीरियड में दिन, फिर रात, फिर दिन, फिर रात, फिर दिन। यानी रात आती है, दिन रात आती है, दिन जाता है, दिन आता है, रात जाती है। वैसे उसी की तरह जो आप लोगों ने एक पेंडुलम देखा होगा क्लॉक में, ये क्लॉक में पहले पेंडुलम राइट साइड जाएगा, फिर लेफ्ट साइड जाएगा, फिर राइट, फिर लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। यानी कि एक पीरियड में वो इधर, फिर दूसरे पीरियड में उधर, इधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। तो ये भी एक मोशन है, और इस मोशन को क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। यानी कि देखो, 3 मोशन हमने समझाया अभी आपको। जो भी चीज़ सीधे जाती है उससे क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं, या रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। कोई भी चीज़ गोल गोल घूमती है वो कौन सा मोशन हो गई, सर्कुलर मोशन हो गई। और कोई भी चीज़
जो आती है फिर जाती है और फिर आती है और फिर जाती है, तो वो कौन सा मोशन हुई? वो मोशन हो गया कौन सा? वो हो गया पीरियोडिक मोशन। तो ये 3 मोशन थे जो आप लोगों को अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड along the ground. Thus, the ball undergoes a rectilinear motions as well as rotational motion. Can you think of other examples where objects undergo combinations of different types of motion? We did many measurements activities and discussed some kinds of motions. We saw that motions in a change is in the position of an object with time. The changes in the positions can be determined through distance measurements. This allows us to how fast or slow a motion. The motion of a snail on the ground, a butterfly flitting on from flower to flower, a river flowing, an aeroplane flying, moon going around the earth, and blood flowing inside our bodies show that there is motion everywhere around us. अब इधर समझिए, जो पेंडुलम है, पेंडुलम क्या? पेंडुलम के नीचे एक स्टोन बॉल होती है जो कि एक मोशन में घूमती रहती है, उस मोशन का क्या नाम है? पीरियोडिक मोशन। और उसी तरह ये खाली यही 3 मोशन नहीं होते, हर जगह मोशन ही मोशन है। कैसे? ट्रेन जाती है फिर आती है, जाती है फिर आती है, ये भी कोई मोशन हुआ, ठीक है। जो नदी है वो बह रही है, फ्लो हो रही है, तो वो भी एक मोशन है। एक बटरफ्लाई है जो उड़ रही है, मतलब कि एक बटरफ्लाई है जो इस फ्लावर में जाती है, फिर दूसरे फ्लावर में जाती है, फिर तीसरे फ्लावर में जाती है। उसी तरीके से जो एरोप्लेन है वो भी मूव कर रहा है। मून है वो भी आता है रात को, फिर चला जाता है, फिर रात को आता है, आते जाता है, मूव कर रहा है। तो हर जगह मोशन हो रहा है, यानी कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी चीज़ मूव कर रही है वो सब एक मोशन के अंदर मूव कर रही है। हमारे अगल बगल हर जगह मोशन ही मोशन हो रहा है, यानी बहुत सारे मोशन है जो हम लोग जानते भी नहीं है और वो हो रहे हैं। तो अभी तो हम लोगों ने इस वीडियो में खाली 3 मोशन समझे, रेक्टिलिनियर मोशन जो कि सीधे लाइन में जाना है, सर्कुलर मोशन जो कि गोल गोल जाता है, और पीरियोडिक मोशन जिसका एक पीरियड है, इतने टाइम में आएगा, इतने टाइम चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा। तो ये जो हमारा रीडिंग पार्ट है तो खत्म हो गया, चैप्टर भी खत्म हो गया। इसके कीवर्ड्स है, इसे पढ़ लेते हैं। सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस मेजरमेंट मोशन, पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, एसआई यूनिट्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो जो कीवर्ड्स हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया और ये भी खत्म हो गए। अब जो इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज हैं ये अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।